Hello, students. Here once again, I welcome you to my channel, The Athenaeum, an abode for English. Today, I'll discuss with you a new chapter from the book First Flight of Class 10, and it is Two Stories About Flying. As you know, the chapter Two Stories About Flying has contained two stories. Number one is his first flight, and number two is Black Aeroplane. So in this video I'll discuss with you the chapter or the story his first flight. Before going to the text, let me give you a small introduction of the chapter his first flight. Here we will read about a family of seagull, where a small seagull or a baby seagull was afraid of flying and totally depended upon his parents and his family for his daily food. But his parents and his family knew it well that they would not provide him food forever. So he must be self-dependent. So they tried their best, and finally they made it possible to fly. They helped him to how to learn flying, and finally the seagull, forgetting his fear, learned how to fly. So for the detail we have to go through the line. Now let's go to the text. Before going to the text, let me tell you, if you have not subscribed my channel yet, then subscribe it and press the bell icon for more videos. Flying. Here, First Flight, Chapter 1. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. So, the young seagull था, was alone on his ledge. Ledge में वो अकेला था. Here ledge means already it is given a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. मतलब you can understand from a high place. Okay. His two brothers and his sister, उसके दो भाई और बहन, वो already जा चुके थे, had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Okay. So यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके जो भाई थे और जो बहन थे वो ऑलरेडी चले जा चुके थे और वो ऑलरेडी जा चुके थे उड़ के. बट ये जब भी somehow when he had taken a little run, जब भी वो कोशिश करता है दौड़ने की, forward to the brink मतलब the edge part of the last part of the ledge, and attempted to flap his wings, और कोशिश करता है अपने पंख को, अपने विंग्स को फ्लैप करने की, मतलब उड़ने की कोशिश करता है. he became afraid, वो डर जाता है. The great expanse of sea stretched down beneath, तो समुंदर बहुत बड़ा है, ये हम भी जानते हैं. And it was such a long way down, miles down, और बहुत ही नीचे तक जाता है, बहुत गंभीर होता है, बहुत डेप्थ होता है समुंदर, ये सबको पता है. सो उसी डर के वजह से वो उड़ नहीं पाता, वो डर जाता है. सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सीगल, यंग सीगल कोशिश करता है या नहीं, whether he attempted or not, तो आंसर आएगा yes, he tried, he attempted, but he got afraid due to being lifeless. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो क्या करता है, उसे लगता है कि he thought कि जो उसके जो छोटे छोटे विंग्स हैं वो उसे हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगा. That is why he bent his head back and ran away back to the little hole. जहाँ से वो आता है वहीं से वो वापस फिर वहाँ पे चले जाता है. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. सो यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है कि उसे लगता है कि वो
अपने जो छोटे विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर जाएगा और वो पानी में डूब जाएगा। पर उसके जो भाई और बहन हैं जो उससे भी छोटे हैं और उनके जो विंग्स है उससे भी छोटा है, शॉर्टर देन हिज ओन, ओके, रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लेव अवे, और वो भी उड़ जाते हैं लेकिन ये उड़ नहीं पाता। देखो यहाँ पे यू हैव टू नोटिस हियर कि इसके विंग्स उसके भाइयों से बड़े हैं, फिर भी ये डर जाता है, लेकिन वो लोग बिना डरे आराम से उड़ के चले जाते हैं। सो यहाँ पे द मेन रोल इज प्लेड बाय फियर, डर। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for life of him he could not move। तो उसके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे लिखा है हिज फादर एंड मदर दोनों हैड कम अराउंड, उसके चारों तरफ उसके पास आते हैं, कॉल टू हिम श्रीली, उसे श्रीली मतलब शार्पली, लाइक थ्रेटनिंग, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग ही का मतलब रिब्यूकिंग, गाली देते हैं, स्कोल्डिंग, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, उसे डराते हैं कि अगर स्टार्व मीन्स बीइंग हंग्री, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे, इफ यू नॉट ट्राई टू फ्लाई देन वी विल लेट यू स्टार्व, वी विल लेट यू हंग्री, तुम्हें हम भूखे छोड़ देंगे, खाना नहीं देंगे। बट लेकिन वो क्या कर सकता है, वो उसे डर तो खा रहा है। ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ डाइंग, वो सोचता है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूं तो मैं मर जाऊंगा, मैं पानी में गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा, एंड आई विल डाई। सो दैट फियर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ, ही नेवर ट्राइड इट एंड ही नेवर मस्टर्ड अप, जो यहाँ पे था मीनिंग मस्टर अप मतलब गैदर, अपना जो साहस है उसे इकट्ठा नहीं कर पाता और नहीं उड़ पाता। That was 24 years ago. Since then, nobody had come near him. That was 24 hours ago. मतलब अभी तक 24 hours हो गया है, 24 घंटा हो गया, अभी तक उसके पास कोई नहीं है। Since then, nobody had come near him. उसके पास कोई भी नहीं है, सब उड़ के चले गए, एक दिन बीत गया है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। वो देख रहा है, उस लेज में खड़ा होकर वो देख रहा है कैसे उसके पेरेंट्स उड़ रहे हैं अपने भाइयों के साथ और उसके भाइयों के साथ और उसके बहन के साथ, और उन्हें सिखा रहे हैं। परफेक्टिंग देम मतलब ट्रेनिंग देम, मेकिंग देम परफेक्ट। किस में परफेक्ट बनाना चाहते हैं वो लोग? आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो आर्ट है उसमें उन्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, स्कीम द वेव्स का मतलब क्या है? मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस, मतलब पानी के ऊपर से कैसे उड़े। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे मछलियों के लिए पानी में डाइव करें। ओके, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, और उसने ये भी देखा कि उसका जो भाई है, ओल्डर ब्रदर उससे जो बड़ा है, उसने अपना पहला मछली उसने पकड़ा है। एंड फर्स्ट हेरिंग का मतलब है सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक मछली। एंड डिवोर इट का मतलब है ईट एट ए जनरल स्पीड, मतलब आराम से मजे ले लेके खाना। सो वो खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर के ऊपर खड़ा होके, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, तो जो क्योंकि वो पहली बार एक मछली पकड़ा है उसके भाई ने, बड़े भाई ने, और वो उसको खा रहा है, तो उसके चारों तरफ पूरा फैमिली खड़ा है और उसे एनकरेज कर रहा है। एनकरेजिंग द सीगल विथ ए प्राउड कैकल। प्राउड कैकल का मतलब क्या है? मतलब एक साउंड क्रिएट करके, चिल्ला चिल्ला के, उनका जो साउंड होता है उसे चिल्ला चिल्ला के। दे वर एनकरेजिंग the seagull, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting with him his cowardice। and all the morning, पूरा सुबह वो क्या कर रहे थे? the whole family, पूरा family had walked about on the big plateau। okay, वो जो plateau है, a large flat area or a land that is higher than other areas of land that surrounded it, मतलब वो जो प्लाट्यू है वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, उस प्लाट्यू के चारों तरफ वो उड़ रहे थे। एंड मिड डाउन द ऑपोजिट क्लिफ से टंटिंग हिम, टंटिंग मतलब
क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज हिम, और उसको गाली देना, स्कोल्ड हिम विथ हिज कावर्डाइज, उसकी डरपोक, उसकी जो डर के वजह से, कावर्डाइज डर के वजह से वो उसे गाली दे रहे हैं. The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. So अभी हमें और एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि क्योंकि वो 24 घंटे पहले वो लोग उसे छोड़ के चले गए हैं, तो वो उसे बहुत भूख लगने लगा है, और उसके जो सूरज की जो सन, उसकी जो असेंडिंग द स्काई, धीरे धीरे वो असेंडिंग मतलब चढ़ना, ओके, ग्रो अप, सूरज की ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो उसका जो सनलाइट है, उसका जो रेज है, उसके ऊपर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भूखा भी है. ही हैड नॉट ईटन इन द प्रीवियस नाइटफॉल, कल से वो कुछ खाया नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा महसूस कर पा रहा है. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. सो उसने क्या किया, उसने एक प्लान सोचा, चलो ये लोग मेरे पास ऐसे नहीं आएंगे, लेट्स मेक ए प्लान. वो लेज के पास जाता है, पूरा एज के पास जाके एक पैर को छुपा लेता है, और दूसरे पैर में, एक ही पैर में खड़ा होके प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, ऐसे प्रिटेंड करता है, मतलब मेक एन एक्ट, एक रोल करना, ड्रामा करना, जैसा दिखावा करना कि मैं गिर रहा हूँ, फॉलिंग asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो कोई भी उसे, तभी भी कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था. उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो वहाँ पे प्लेट्यू के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, वो they were dozing means taking a little snap, मतलब थोड़ा सा सो रहे थे वो, थोड़ा सा मतलब सोने की कोशिश करना. Heads sunk into their necks. His father was preening मतलब दिया गया है make an effort to maintain feathers. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. तो कोई भी उसे नोटिस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ only the mother. She was standing on a little high hump on the plateau, her little white breast thrust forward. वो एक प्लेट्यू के ऊपर एक हाई हम्प, एक ऊंचा जगह पे वो खड़ी हैं. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनके जो चेस्ट है वो आगे आया है. पुश विथ फोर्स, थ्रस्ट का मतलब क्या है, पुश विथ फोर्स. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक. तो वो क्या कर रही है वहाँ पे खड़े होके, उनके पैरों के नीचे जो एक मछली पड़ा हुआ है उसे वो शी टोर अ पीस ऑफ फिश, एक मछली को वो फाड़ रहे हैं, मतलब वो अपनी बिक से, अपने चोंच से वो उसे फाड़ रहे हैं. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक ऑन द रॉक. स्क्रैप्ड मीन्स रब्ड टू मेक इट शार्प. हाँ, तो एक मछली का एक पीस वो तोड़ते हैं, फिर अपना जो चोंच है उसे ऐसे पत्थर में घिस के वो थोड़ा शार्प कर रहे हैं. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. तो वो ये जो सीन देख के उसके मम्मी जो कर रहे थे, उसके जो मदर जो कर रहे थे, ये सीन देख के वो पूरा पागल हो जाता है, क्योंकि ही ऑल्सो लाइक्ड टू डू दैट. इसे वो सब करना उसे भी बहुत पसंद है. वो भी ऐसे चाहता है कि ऐसे मछली को वो खाए और अपना जो बीक है वो पत्थर में घिसे. गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो चिल्लाने लगा अपने हिसाब से साउंड करके, गिविंग ए साइन कि मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ. गो को आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. उसके जो मम्मी थी वो भी चिल्लाने लगी उसके रिप्लाई से, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड. और ये बताने के लिए कि, डेरिसिव का मतलब है कि ये बताने के लिए कि तुम एक गधे हो, तुम एक डरपोक हो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बहुत दुखी से, प्लेंटिवली मतलब वेरी सोरोफुली, वो चिल्लाने लगा. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन थोड़ी देर बाद ही अटर्ड, वो चिल्लाने लगा और साउंड करने लगा जॉयफुल स्क्रीम, मतलब खुशी से,
जो खुशी का जो आवाज़ होता है उसी से वो चिल्लाने लगा. His mother had picked up a piece of the fish and was lying across to him with it. flying across to him with it. उसने क्या देखा कि उसके मदर जो थी वो एक मछली का पीस अपने बीक में पकड़ के वो उसके तरफ उड़ रही हैं. सो ही फेल्ट दैट कि उसके माँ उसके लिए खाना लेके आ रही हैं, तो वो बहुत खुश हो गया. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. So वो जब देखा उसके माँ उसकी तरफ उड़ के आ रही हैं एक मछली के एक पीस लेके, सो वो भी झुकने लगा. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, मतलब बहुत खुशी से. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर आज शी फ्लू अक्रॉस, कोशिश किया उसने कि कैसे भी उसके पास उसके माँ के पास वो पहुँच जाए, जिससे क्या होगा ना वो अपना खाना खा सकता है. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. But when she was opposite to him, she means the mother, but just opposite to him, she halted, means stopped, her wings motionless. उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए, मतलब रुक गए, मतलब वो उड़ के नहीं आ रही थी आगे. द पीस ऑफ हिज फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, मतलब उसकी माँ के मुंह में चोंच में जो फिश थी छोटी सी, वो ये जो छोटे सीगल था उसके पीस मतलब पूरे बीक के पूरा आसपास था, पर उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. So थोड़ी देर के लिए तो ये जो सीगल था, बेबी सीगल, he became confused कि क्यों माँ मेरे पास तो उड़ के आ रही थी, अभी मेरे पास में आके पहुँचने के बाद क्यों मुझे नहीं दे रही है, मतलब मेरे बहुत ही करीब है बट वो मुझे वो मछली का जो पीस है वो नहीं दे रही है. वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, हैरान होके. वंडरिंग वाई, वंडरिंग मतलब वही भी सरप्राइज होके. वाई शी डिड नॉट कम नियर, क्यों मेरे पास नहीं आ रही है. एंड देन मैडेंड बाय द हंगर, मतलब भूख से पागल जैसे हो जाता है वो. मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, कूद पड़ता है वो फिश के ऊपर. तो यहाँ पे वो पहले तो वो एज में खड़ा था पूरा लास्ट में, जब वो कूद पड़ता है तो वो नीचे गिर जाएगा, पक्का बात है. So with a loud scream he fell outwards and downwards into space. जब वो कूद गया तो डर के मारे वो चिल्लाने लगा. लाउड स्क्रीम, स्क्रीम मतलब साउटिंग, जोर से चिल्ला के वो फेल आउटवर्ड्स, आगे गिर गया, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे गिर गया. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous terror, टेरर का मतलब क्या है, डर, फियर. Monstrous मतलब बहुत ही खतरनाक डर उसके seized him, उसे कैप्चर कर लिया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, जैसे लगा कि वो मर जाएगा, उसे लगा कि उसका जो हार्ट है वो अभी बंद हो गया है. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था डर के मारे. उसे लगा कि मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा अभी. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये जो डर था ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए था. लास्टेड ए मिनट, फॉर फ्यू मिनट्स. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. थोड़ी देर बाद उसे ये महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड आउटवर्ड्स, मतलब उड़ने की कोशिश कर रहे हैं. द विंड रॉस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स एंड देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. तो उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, हवा क्या हो रहा है ना, हवा के जो झोंके हैं उसके शरीर में आके टकरा रहे हैं, उसके पेट में आके टकरा रहे हैं, एंड उसके पंख में आके टकरा रहे हैं. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. उसने महसूस किया कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा को काट के जा रहे हैं और वो नीचे नहीं गिर रहा है. जो नीचे गिर रहा था डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, अभी वो नहीं हो रहा है. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, सोरिंग ग्रेजुअली, फ्लाइंग डाउनवर्ड्स, नीचे उड़ रहा है फिर ऊपर उड़ रहा है, फिर नीचे उड़ रहा है फिर ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है. ही वॉज नॉट ट्रेंड, ही डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई. फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फ्लाइंग, दैट इज वाई हर फ्लाइंग प्रोसीज्योर वॉज नॉट करेक्ट. वो नीचे उड़ रहा है फिर ऊपर उड़ रहा है, नीचे उड़ रहा है फिर ऊपर उड़ रहा है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अभी उसके अंदर डर नहीं है. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा उसे डीजी महसूस हो रहा है. डीजी का मतलब क्या है दिया है, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस.
उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बाकी डर नहीं है उसके अंदर. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स. फिर से उसने अपने विंग्स को फ्लैप करने लगा एंड सोड अपवर्ड्स, ऊपर उड़ने लगा. गा 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 को आ. So that was the sound, that was just joy, that was the joy, sound of joy. His mother swept past him, her wings making a loud noise. उसके माँ भी उसके पीछे आ रहे थे, making a loud noise. He answered her with another scream. तो उसने अपने माँ को और एक बार चिल्ला के उसने आंसर दिया. Then his father flew over him screaming. फिर उसके पापा भी उसके ऊपर उड़ने लगे चिल्ला चिल्ला के. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो उसने देखा कि उसके जो माँ, उसके पापा, उसके भाई और बहन सब उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं. कर्वेटिंग मतलब लिपिंग लाइक ए हॉर्स. बैंकिंग का मतलब यहाँ पे दिया गया है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर एंड सोरिंग एंड डाइविंग. ओके, उड़ रहे हैं और डाइव भी मतलब डाइविंग कर रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and carve and shrieking shrilly. तो अभी वो भूल ही गया था कि ऐसा एक टाइम था. There was a time when he was afraid of flying and he had never flown. तो ये ऑलरेडी वो भूल ही गया था कि मैं एक ऐसा भी टाइम था कि मैं डर रहा था उड़ने के लिए और मुझे डर लग रहा था. ठीक है, तो अभी वो कोशिश कर रहा है कैसे, स्ट्रिकिंग श्रीली मतलब जोर जोर से साउंड करके चिल्ला चिल्ला के उड़ रहा है. बिकॉज इट वॉज द जॉय कि मैं उड़ पा रहा हूँ. जो डर था कि मैं मर जाऊँगा अगर मैं उड़ने की कोशिश किया, इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई देन आई विल ड्राउन इन द सी, ये जो डर था वो अभी गायब हो गया है. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो उसने क्या देखा कि वो समुंदर के ऊपर उड़ रहा है, flying straight over it, समुंदर के ऊपर, सी के ऊपर, facing straight out over the ocean, सीधे उड़ रहा है. He saw a vast green sea, बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही expanded sea beneath him, उसके नीचे, विथ लिटिल रीजेस, छोटे छोटे रीजेस के साथ. रीजेस मतलब वो जो होता है समुंदर के ऊपर जो थोड़े थोड़े लहर आते हैं उसे रीजेस. मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बिक, उसने अपनी बिक को थोड़ा मुड़ा, साइडवेज एंड साइड में मुड़ा उसने, एंड कॉड अम्यूजली, कॉड मीन्स मेक ए साउंड, अम्यूजली बहुत ही खुशी से, बहुत ही मज़े से उसने एक साउंड किया. His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मदर थे और उसके जो भाई बहन जो भी थे वो समुंदर के ऊपर आके लैंड कर चुके थे, मतलब पानी में वो तैर रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. वो लोग उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे जोर जोर से साउंड से. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसने भी कोशिश किया कि उसके जो पेरेंट्स और उसके जो भाई बहन जैसे समुंदर के ऊपर तैर रहे हैं तो मैं भी करूं. बट when he tried, he found that his legs were getting drowned. उसके जो legs हैं, stand on the green sea, his legs sank into it. उसके जो पैर डूब जाते हैं. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. फिर से वो डर के मारे चिल्लाने लगा. With fright, screamed with fright and attempted to rise again. फिर से वो कोशिश किया कि मैं कैसे यहाँ से उड़ जाऊँ, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted. तो बट वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था इतना उड़ने के बाद, और जो हम पहले से जानते हैं कि वो भूखा भी था एक दिन से पहले, तो वो टायर्ड हो चुका था और भूखा भी था, इसलिए उसके अंदर इतना एनर्जी नहीं था कि फिर से वो उड़ पाए. एग्जिस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये एग्जिस्टेड मीन्स अगेन द टायर्ड, ये जो अद्भुत प्रकार का जो एक्सरसाइज उसने किया पहली बार ज़िंदगी में, इससे वो बहुत टायर्ड हो चुका था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो समुद्र में डूब गए. एंड देन हिज बेली टॉस्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. फिर उसने देखा कि पैर तो गिर गए और उसका जो पेट था, बेली, वो पानी में टच कर रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो नहीं डूब रहा है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और वो पानी में तैर रहा है. एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसके जो फैमिली है, दे वर स्क्रीमिंग, दे वर शाउटिंग, दे वर प्रेजिंग हिम, उसे
उसकी तारीफ कर रहे हैं, एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उन सब के जो बिग्स है उसके माँ के, जो उसके पापा के, उसे वो ऑफ़र कर रहे हैं। क्या ऑफ़र कर रहे हैं ना? छोटे छोटे पीसेस, स्क्रैप्स, छोटे छोटे पीसेस ऑफ डॉग फिश। सो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो उसने अपना फर्स्ट फ्लाइट जो था, पहला जो उड़ान था, वो सीख लिया था। सो दिस इज द स्टोरी of a seagull, as I told you in the introduction, where he was afraid of flying, and finally with the effort of his parents and his own also, he learned how to fly. वो सीख गया है कैसे उड़ना है। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम important questions, and if you will have any doubt from the questions that I am giving you, you can ask me in the comment section. And at last, don't forget to subscribe, like, and press the bell icon. Thank you very much. I hope I have done my best. And if you like the video, then kindly comment. And if you require anything, also comment.